आपको अभी you got all of you got the PDF? अभी मैंने पॉलिटिकल साइंस की PDF सेंड कर दिया मॉर्निंग आपको। सर, गुड आफ्टरनून सर। So all of you got it because आप लोग ना खुद जितने भी ऐसे क्लास में से all over the cell then to like उसको आप लोग डाउनलोड कर लेना because it will be deleted from my site so it won't be like download वहाँ से डाउनलोड नहीं हो पाएगी फिर आपको, ठीक है? So I am saying कि just download it on time, okay? And make a folder उसके अंदर अपनी जितनी भी PDF आती रहेंगी on the like all the chapters. So I'm going to share with you, okay? Is it audible properly now? Yes, Mr. Yes, I'm audible. Yes, sir. Okay. So now what we have to do the revision for the political science also. So you know that only two chapters are coming. What is democracy then the constitution and design. Okay. So just tell me what you understand about democracy. ये तो बचपन से पढ़ते आए हो आप लोग, है ना? What you understand about the democracy? Yes, tell me. And check out all of you that PDF है ना उसको अपने फोन में like in a second video just open it. इसको तो चलने दो, चल रही है अभी you are able to listen me ना, आप इसको चलने दो, बाकी अपने साइड में उसको ओपन करके रखो, okay? PDF को open a PDF and all you will going to get the same, okay? So what is this in this chapter? Basically, what is this and why democracy? Do you think India like if I would say India, which kind of which type of form we have, which type of government form we have in India, which type of government form we have? Just tell me. अच्छा वॉइस नहीं आ रही तो लेट मी नो द थिंग, अगर नहीं आ रही तो लेट मी नो। अभी वॉइस आ रही है बच्चों आप लोग को? Yes, sir. Okay, so what Yes, sir. I'm asking also, basically what type of government we use, India have? Which type of government India has? Tell me. India is a type of a democratic country, isn't? Yes, India is a kind of a democratic country. What do you understand about a democratic country? If I would say democratic country, what do you understand about a democratic? Like, just tell me. कुछ तो पता होगा ना आपको डेमोक्रेसी क्या है? Yes, sir. Okay, democracy के बारे में what do you understand about democracy? So, Yes, tell me. so people have right to choose their leader. Leader or the representative, we can say. In a democracy, we have like a right to like normal. All citizens have a right to the representative. Is it or not? Yes, sir. Basically, they have a right to choose or not. This is the fact. Okay, so we have to go in that way. The democracy is kind of form which is actually run by the people. Actually, run by the selected representative of the people. Is it? Like if I would say, democracy is a kind of a which type of format where the people actually choose and elect their representative in the form of leader, and that representative used to run the country. Is it? एक democracy आपने अभी जैसे you are in 10th class, you start getting you start like giving the vote. Okay, and ठीक है आप लोग अभी 10th में तो ये 3 साल में आप लोग वोट देना स्टार्ट कर दोगे. Okay, in the next coming year. So then you will be able to get the vote. आप जब तक वोट देने लायक हो जाओगे. तो वोट से होता क्या है बेसिकली? अभी जैसे आपके कितने सारे इलेक्शन हुए, आपकी क्लास में there are many students out there. They are not naming anyone, like there are many students out there those who are actually engaged in
काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ये तो लोग हमारे नेताजी का सपोर्ट करते हैं, सभी बच्चे हैं ना क्लास में, लाइक ऑल ऑफ यू आर लाइक, है ना, कोई ना कोई है, यू कैन गेट द थिंग इन दैट वे. ओके, one point. Okay, so democracy is basically what? It is like a rule of the people. Okay, basically we are ruling or not. हम रूल कर रहे हैं या कैसे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं? कौन कर रहा है रूल? हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. बताओ. Who will be or अच्छा देखो, अभी तो देखो बताते रहो, देखो if start at the kind of you can say after a degree you should be answer. I know that you are able to get a thing. So it's a democracy normal chapter. It's a very easy chapter to get. Isn't or not? It's a very easy chapter. Okay, I'm not. Okay, basically, is it my voice is not coming? As Krishna is saying regarding the voice, or like, is that I'm not audible to all? किसको नहीं आ रही होता तो फिर उस हिसाब से फिर कराएं तो choose in that between. Okay, let me do one thing and then try to. Yes, अभी वो ठीक है. You are not getting my voice, Priyanka. Yes, I'm getting my voice. Yes, sir. Okay. So, like all of you, what is democracy and why is democracy? दो चैप्टर सिंपल दो वर्ड में चैप्टर कंप्लीट होता है कि एक तो डेमोक्रेसी है क्या, ठीक है, एंड सेकंड वन व्हाई डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, व्हाई वी नीड दिस इज अ थिंग लाइक it is the rule of people elect and government of the people for the people and by the people. Actually it is says like we used to elect the person, हम लोगों में से एक नॉर्मल इंसान खड़ा होगा जो कि पॉलिटिकल पार्टी का थ्रू होगा, इज इट, देन इट इज लाइक द पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स. हम वोट देते तो इलेक्ट कर रहे हैं, हम हमें खुद को पसंद है कि कौन किसको देना है, मतलब कौन काम करेगा हमारे लिए. तो ऑल द हर लोग अपने सॉल्व इन विच पीपल एक्चुअली वर्क बोल देते हैं कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल. Democracy ऐसी government है कि by the people of the people for the people. Actually, it is not a perfect definition. It is a kind of a democracy is a kind of a government where people elect their candidates and elect their candidates and make them by voting. They make them the representative of the representative of the people for the government. Is it government? Okay. Yes. Now next thing is the features of a democratic government. Features of democratic government क्या होता है? अभी the screen is visible to all. Yes, tell me, the screen is visible to all. Screen दिख रही है बच्चों जो मैंने screen share कर रखी है? Yes. Are you able to get the things? Yes. So now sir. merits means क्या हो जाएगा यहाँ पे? merits मतलब advantages भी कुछ ना कुछ होते हैं. So advantages we can say like there are now it is accountable, मतलब जिस ग्रुप के अभी बोलते हैं ना ऑपोजिशन पार्टी, अगर थोड़ा न्यूज थोड़ा हो गया तो आपको पता चलेगा. ऑपोजिशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ऑल्दो इट इज नॉट फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता, फ्री तो बिल्कुल नहीं होता, मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन मतलब बिना किसी डर के होता है. बट अगर आप दूसरी उसमें जाओगे, ओके, दूसरी कंट्रीज में जाओ, दूसरे अगर गाँव के एरिया में आप वोटिंग देखोगे तो वहाँ पे
फ्री फेयर नहीं होता, वहाँ पे लोगों को पैसा देते कि लाइक देयर हैज बीन डीमेरिट्स, और भी हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है, इन दैट वी गोइंग टू स्टडी द डीमेरिट्स आल्सो। देन वी हैव टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब मान लो एक दिल्ली का इलेक्शन, अगर आप नॉर्मल गुड़गांव पे ठीक है, आपकी जो सीट आती है, जो आपकी लोकसभा तो नहीं, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट आती है वो है बादशाहपुर, ठीक है। आपकी जो बादशाहपुर की सीट आती है, बादशाहपुर से एक एमएलए सेलेक्ट होता है। अब वो आपके एरिया के लिए काम करेगा, नाथुपुर के बाकी जितने भी सिकंदरपुर के गाँव है आसपास सब एरिया की डीएलएक्स के लिए भी वही काम करेगा। दैट पर्सन आपने तो चूज नहीं करा, लेकिन आपने वोट तो दिया है। सो इट इज अ काइंड ऑफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट हमारे एरिया में डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, so this is a kind of conflict you used to get the thing. Then enhance of the dignity of the people or dignity of citizens. Dignity means क्या होता है? Just tell me. बहुत easy है, बताओ. Sir, dignity. What is the meaning of dignity? Sir, honor. Yes. Honor, respect, है ना? अपनी खुद की इज्जत, सिंपल है ना? So it is a kind of enhancing the dignity of citizens. Like if I would say कि whatever हम किसी भी लीडर को जाके ये बोल सकते हैं whatever you are, आज की डेट में आप जो भी हो वो हम लोगों के कारण, हम लोगों ने आपको वोट दिया है। बेशक वो देखो, अभी हम सबको पता है हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली बिन देयर, कि मूवीज देखते हैं हम सबको पता है, न्यूज देखते हैं किस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं। एक बार एक इंसान जीत जाता है, वो हमेशा जीतते रहेगा। एक बार मंत्री बन जाओ आप, हमेशा के लिए आपको खाने, बट दैट इज नॉट द एक्चुअली एसेंस ऑफ अ डेमोक्रेसी। लाइक बेसिकली ऐसा नहीं है। लेकिन अभी क्या सीन, डेमोक्रेसी इज वर्क कि जिसमें हम लोगों को रूल करने को मिलता है, हम लोग खुद ही चूज करते हैं ना। नरेंद्र मोदी इज द सेकंड पर्सन, लाइक ही इज सर्विंग एज अ पीएम एज अ सेकंड टर्म। नरेंद्र मोदी है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज एक्चुअली सर्विंग इंडिया इन द सेकंड टर्म। दूसरा टर्म चल रहा है ना उनका, मतलब दूसरी बारी चल रही है ना, कि जैसे क्रिकेट में देखते हो तो बोलते हैं ना सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म, तो उनकी दूसरी बारी चल रही है ना। अब वो क्यों खेल रही है? हम लोगों ने तो उनको सिलेक्ट करा है, ठीक है। तो करेक्ट इन इज ओन मिस्टेक, करेक्ट इज ओन मिस्टेक मतलब गलती करते तो दे विल हैव टू पे फॉर दैट आल्सो। अगर डेमोक्रेसी में इफ समवन इज एक्चुअली डूइंग ऑल द थिंग्स, so they have to pay for that thing also. Is it point? Yes, tell me. And demerits of democracy, okay? Demerits of democracy क्या हो? Demerits मतलब disadvantages of the democracy. तो अब disadvantage क्या हो सकता है basically? देखो, economic inequality. Economic inequality क्या होता है? देखो, बहुत सारे आपको जब when I was teaching you in 8th class, जब आपको पता चला होगा कि when I used to give you the certain examples of this kind of जब election चल रहा था, हरियाणा में election था ना, in the term like last year election था, तो उसमें क्या था? कि सर देखो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, किसी कैंडिडेट के पास कुछ पैसा है, वो लेकिन किसको खड़ा करा गया, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है, दे कैन डू द कैंपेनिंग ऑफ द एरिया, ओके। They doesn't have so much of money due to that's why it is like economic inactivity was there, okay. Economic inequality, you got the point. Then we have the, we can say social inequality. Social inequality मतलब ऐसे भी होता है कि हमारे इंडिया में अगर डेमोक्रेटिक वे में देखोगे तो लोग अपने अपने कास्ट के अकॉर्डिंग टू द कास्ट रिलीजन दे एक्चुअली मेड देयर ऑल द थिंग्स, इजंट? वो अपने पॉलिटिकल पार्टी का उसके थ्रू बना लेते हैं। 10 वेट सेकंड। Okay. So now money and muscle power in action. अब आपको पता ही है मनी एंड मसल पावर। मसल पावर ये नहीं कि सब एक जिम जा रहे हैं। मसल पावर मीन्स अपनी शक्ति दिखाते हैं, हम कितने बाहुबली राजा, आपने सुना भी होगा। ओके, आप लोगों ने सुना है ना इलेक्शन के टाइम पे, देखो वो एक बाहुबली नेता। अब अगर आप कोई यूपी का चैनल कोई उठा देखोगे ना, तो आपने सुना होगा यूपी, एमपी, इवन हरियाणा के भी अपने देखो बाहुबली नेता आए हैं हमारे। तो वो बाहुबली मीन्स क्या होता है? उनके पास ताकत है, they have kind of a, you can say the muscle power actually. वो एक तरीके के गुंडे हैं, but they have started doing their work in a political system, okay? इतना आ रहा समझ में?
You're getting my point? Yes, tell me. Yes, no, anything. Yes, बच्चों आ रही है आवाज? Okay, so what I'm actually saying, it was like you can say this is money power limited है, ठीक है? So it is like the word is corruption here. What do you tell me the same meaning of corruption? Corruption के mean क्या होती है बताइए? सोचे ऐसे तो क्लास नहीं चलेगी देखो फिर अगर आप आंसर रिस्पॉन्स नहीं करोगे हाउ कैन आई गेट टू नो यू शुड नीड टू गेट इन दैट थिंग इज इट हेलो that's why I'm actually saying there is nothing like for revision or taking an extra class. If I'm not able to like if you're not getting my point, let me know. Or if you're not getting my voice also, let me know the thing. Tell me the thing. Just tell me the thing. I have sent you the message also. Just tell me. Means सुष्मिता वॉइस आ रही है यस और मतलब यस का मतलब क्या है ओके यू आर गेटिंग माय वॉइस बेसिकली ओके ठीक है तो अभी देखो क्या है बेसिकली जैसे व्हाट आई एम सेइंग कि आपने टीवी में भी सुना होगा न्यूज़ में सुनते हो कि हर्ष योर सुष्मिता ओके इट्स ब्रेकिंग बच्चे ब्रेक तो हो रही है आई नो दैट आई गेट टू नो कि देयर इज अ ब्रेक इन द वॉइस एंड ऑल द थिंग ओके सो इट इज लाइक दैट वी कैन गेट द थिंग ठीक है तो क्या होता है अगर हम देखें डीमेरिट्स ऑफ द करप्शन भी हो गया डिले इन द डिसीजन आल्सो अब डिसीजन क्यों डिले होता है व्हाई इसका रीजन है किसी का व्हाई द डिसीजन वाज डिलेड इन द लाइक इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री डिले क्यों हो जाता है बताओ व्हाई देयर इज ऑलवेज अ डिले जैसे एक राजा होगा ठीक है अभी राजा के बारे में पढ़ेंगे देखो अभी नीचे आएगा ठीक है एक राजा होगा तो राजा लाइक इफ देयर इज अ किंग तो उनका जो ऑर्डर होगा वो फटाफट पूरा हो जाता है ना पर डेमोक्रेटिक में अगर एक प्राइम मिनिस्टर बोले उसके बोलने पे भी बहुत सारी चीजें अटक जाते हैं क्यों वाई अभी लाइक अभी आप एक रिसेंट एग्जांपल देख लो अभी फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर्स में अभी नए रूल्स आने मतलब रूल्स को पालन स्टार्ट करना है ठीक है पर उसमें देरी कहाँ पे आ रही है वेयर वी आर गेटिंग द लेट वेयर वी आर गेटिंग लेट because we have to discuss with all the members of the parliament we have to discuss all the members of the like you can say constituent assembly ठीक है हर किसी से बात क्योंकि हम ऐसी कंट्री में हम ऐसी कंट्री है ना हमारी गवर्नमेंट कि जहाँ पे डेमोक्रेसी सबकी सुनी जाती है और सबकी मानी जाएगी ऐसे नहीं किसी एक जन ने कह दिया तो वो तो अलग ही उसको क्या बोलते हैं डिक्टेटरशिप देखो नीचे लिखा हुआ डिक्टेटरशिप अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हिच वाज इंडिविजुअल पार्टी रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट people do not enjoy any political rights and opposition to the director is not tolerated मीन्स अगर आप बहुत सारी कंट्रीज का देखोगे तो उसमें डिक्टेटरशिप होती है कोई ऐसी कंट्री है अभी आपके एग्जांपल में कैन यू गिव मी सम कंट्री वेयर द डिक्टेटरशिप इज स्टिल देयर बताओ कोई ऐसी कंट्री है जो डिक्टेटरशिप का एग्जांपल दे सकते हो आप अभी बहुत अच्छा एग्जांपल न्यूज़ में आप सुनते होगे यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ नॉर्थ कोरिया आल्सो ओके नॉर्थ कोरिया में भी आप दे सकते हो नॉर्थ कोरिया किंग जोंग याओंग है ना किंग जोंग याओंग है ना उसका बेसिकली क्या है वो डिक्टेटर ही तो है वहाँ के
he is not running any country, उसमें कोई election नहीं होता, कुछ नहीं होता. The people of that country are not enjoying any political rights. They doesn't have a dignity and all the things. Yes, you're getting my thinking how all these things actually happening. Okay, so we can get the thing. Abhi, even if you go in Arab countries also, there is also like a dictatorship. You can say there is a kings and a prince was there. Okay, still the country is like emerging. Arab countries still there is another situation, but in the other countries where still there is a dictatorship. Okay, so if I would say, because in like there is a one content, there's a one you can say region which which actually demanding the freedom from France actually. Okay, they are actually demanding their freedom from the France in the way that they are still ruling all that country. अभी देखो इंडिया से तो चलो ब्रिटिश चले गए हट गए, but there are some parts of the world where dictatorship or you can say colonial rule is still there, and people want a freedom. That's why the thing is happening. Got my point? Yes, Yes, sir. बच्चों आया नहीं आया. तो एंड उसके बाद आता है आपका एक और फैक्टर आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होते क्या है बेसिकली देखो. यूनिवर्सल मीन्स ऑल ओवर, एडल्ट मतलब बड़े, और फ्रेंचाइजी मतलब इस तरह की सिस्टम. ठीक है, और फ्रेंचाइजी मतलब देखो अगर इसको हम डेफिनेशन में देखते हैं, a system of election in which the every adult citizen enjoy the right to vote in the election of representative. Basically, like India, हमें पता है 8 hour as we got 18 hour or 18 years, as we got like as we become the 18-year person, we have a right to vote. ठीक है, छोटे वाले जितने छोटी एज वाले बच्चे होंगे वो क्या इलेक्शन में वोट देते हैं. आफ्टर 18 years ही तो वोट दे पाते हैं. इज इट और नॉट? ऐसे है ना. Yes, पहले अभी sir. अब 10 ये 10th में वोट दे पा रहे हो नहीं ना. अगर आप शायद 12th तक अगर 18 ईयर के हो गए जब तो शायद दे पाओगे. अगर हो जाओगे तो, और नहीं होगे तो यू आर ये वोटर आई कार्ड वोंट बी लाइक नहीं, वो बनेगा भी नहीं. और क्या है वो, आप इलेक्शन में भी दे सकते हो, मीन्स वोट नहीं दे सकते हो. यू कैन टेक पार्ट इन द इलेक्शन प्रोसेस. आप लोगों से ये है कि घर वाले जैसे आपके हैं वो कह सकते हैं साथ में कुछ काम करने को, चलो करते हैं, लेकिन बट you can't vote actually. You get my point? You can't get the right to vote. Okay. Before the scenario, universal of the Korea may be have taken the 18 years old, 18 years. In some part of the world also, is it why screen is visible to all, or it's not? No, sir. Okay. पर आपके पास अभी पीडीएफ ओपन है तो उसमें से भी देखोगे, आप साथ में देख लेना. ठीक है, बेसिकली देखो आप इंडिया में वी हैव अ राइट टू वोट फ्रॉम द एज ऑफ 18. ओके, फ्रॉम द एज ऑफ 18 वी हैव अ राइट. But if we go in a way that in other countries, in the developed countries also, they have reduced the vote to like right to vote from the 16 years also. Like means that as you become the 16-year-old person, you will started getting the vote. Like you can cast your vote. Cast your vote means जैसे एक word है casting the vote. Means कि अगर आप आंसर में ऐसे अच्छे मतलब this is kind certain words you can use in while writing the answer, will get the answer like you. The checker will going to get the thing. Acha, you know the better thing. Okay, this is the way the casting vote. So किसी country में developed nations में 16 years है, किसी में even 15 years की भी वोटिंग पे स्टार्ट हो जाते हैं. मतलब हम तो फिर बहुत पीछे है. आप लोग अब जब 18 हो गए तब आप फिर वर्ल्ड में अपना वोट भी देख चुके हैं फर्स्ट वोट. ओके, दिस वाज द सिनेरियो. ओके, देन ऑपोजिशन पार्टी. ऑपोजिशन पार्टी क्या है, जस्ट टेल मी. Sir, ऑपोजिशन पार्टी का होते हैं. देखो अभी क्या है इंडिया में, किसकी गवर्नमेंट चल रही है, जस्ट टेल मी. बीजेपी गवर्नमेंट, द बीजेपी गवर्नमेंट और द एनडीए. एक्चुअली एनडीए गवर्नमेंट बेसिकली अभी तो पूरा बीजेपी की एनडीए भी है इसमें. एनडीए मतलब अलायंस गवर्नमेंट. जैसे मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में आपको पढ़ा है ना आपने, अलायंस गवर्नमेंट व्हेन देयर वन लाइक व्हेन देयर इज अ पार्टनरशिप वाली गवर्नमेंट को हम अलायंस गवर्नमेंट बोलते हैं. ठीक है,
यहाँ पे सारे लोग मिलके अपनी गवर्नमेंट चला रहे होते हैं, बोलते हैं सारे छोटे छोटे ग्रुप मिल जाते हैं और फिर कहते हैं कि चलो हम ग्रुप हमने गवर्नमेंट फॉर्म कर दी। अब जैसे बीजेपी का अगर टेक एन एग्जांपल ऑफ बीजेपी इज अपोजिशन पार्टी, तो इसकी अपोजिशन पार्टी कौन होगी जो कि मेजोरिटी नहीं ले पाई, दोज नॉट एबल टू गेट द मेजोरिटी। तो जिसके ज्यादा वोट होंगे, जिस पार्टी के ज्यादा वोट होंगे, उसी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है। इतना तो हमें पता ही है हम सबको। जैसे मान लो आपकी क्लास में हम डिवीजन कर देते हैं, देयर आर 30 स्टूडेंट इन क्लास, ओके। तो 2 कैंडिडेट आपकी क्लास में मॉनिटर खड़े हुए, और जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे उसी की गवर्नमेंट फॉर्म होगी, और उसी के सपोर्टर्स होंगे वो लोग। जब मान लो एक को 17 वोट मिले और एक को कितने मिले, मतलब 13 वोट मिले, ठीक है, 17 और 13 में डिफरेंस हुआ। तो मतलब जो 17 वाले लोग हैं वो हो गए आपके रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी, वो उसके रूल चलेगा उसका, क्योंकि वो बोलेंगे भाई हमने तेरे को जिताया है, हम लाइक वी आर द वन, हम तेरे को जिताया है, यू हैव टू वर्क फॉर अस, ओके। ओके, ऐसे भी लोग कहते हैं ना कि आपको हमने जिताया तो आप हमारे लिए काम करना है, आपने अपने मॉनिटर को चूज करा और बोला था मैंने भी वोट दिया था, नाउ यू हैव टू वर्क फॉर मी, लाइक वी आर द फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, उनका हक चलेगा। तो सेम है, जो 13% बच गए, 13% 13 लाइक 13% जो बचे, तो वो क्या, वो लोग कौन है बेसिकली, वो लोग अपोजिशन में बैठेंगे, टीचर को कंप्लेन करेंगे कि सर देखो ये काम नहीं होते, मॉनिटर काम नहीं करता, ये काम होता है सर, ऐसे ऐसे होता है। तो दे विल गोइंग टू सिट इन द ऑपोजिशन थिंग, सिंपली गेट द थिंग। अभी समझना है कि ऑपोजिशन पार्टी क्या होती है, कि दे हैव टू एक्चुअली क्रिटिसाइज द थिंग। आपकी रूलिंग, आप रूल कर रहे हो, यू आर द पर्सन हु एक्चुअली रूलिंग ऑल द वे, ओके, while other person is actually complaining about you to the major person। अब मेजर पर्सन कौन है, योर क्लास टीचर। उनको कंप्लेन कर रहे कि सर देखो इतना बात हुई थी कि जैसे मान लो पार्टी के पास, सर देखो इन्होंने ऐसे कहा था कि हम ये मॉनिटर बनेगा तो क्लास की सफाई करवाएगा, ये सब करेगा। एंड फिर आप लोगों ने, उसने बोला कि हम कर तो रहे, फिर आप बोलोगे नहीं, दिस इज नॉट अ वे। तो वो क्या बात हो जाती है, वो होती है हमारी ऑपोजिशन वाली बात। ओके, दैट इज द स्टोरी ऑफ opposition, just okay. So you got the idea about the opposition party? Yes, tell me. Yes, sir. Yes, tell me the thing. You all of you got the thing about the opposition party का हमको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, मतलब opposition party होती क्या है, उनका काम क्या होता है? Yes, sir. सर ठीक है, अभी सर ने बताया था पहले। ठीक है। अब ये दैट्स व्हाई एक्चुअली देखो रिवीजन है ना, तो अब उसी हिसाब से आपने पढ़ा हुआ है, दैट्स व्हाई आप लोग भी एंगेज रहो कि अगर आपने को सर ने पढ़ा रखा है ना तो अच्छी बात है। इस रिवीजन में तो बल्कि आपकी तरफ से आंसर आने चाहिए। अब होता है वुमेन फ्रेंचाइजी। वुमेन फ्रेंचाइजी क्या होता है बेसिकली, जैसे like in earlier times women are not allowed to vote, okay, in earlier times women are allowed to vote, but now women can vote also. Women can be a representative of the people also, like we all, like if I would say Mamata Banerjee of West Bengal, she is the like she's the what, she is the what, she is what of West Bengal, who West Bengal की क्या है basically, प्राइम मिनिस्टर है ना वहाँ की, वेस्ट बंगाल की जो ममता बनर्जी है वो प्राइम मिनिस्टर है ना, इज इट, कौन है वो ममता बनर्जी वहाँ की वेस्ट बंगाल की प्राइम मिनिस्टर? सर चीफ मिनिस्टर। Chief Minister, yes. She was like she is actually the Chief Minister of West Bengal. Okay, so she is also representing her her state to a country. वो भी अपना स्टेट को मतलब अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है. So there comes a women franchise. Like women are also allowed to be a part of that country. Okay, get the point? Yes, tell me. Yes. Or if there is a one thing is there, if you don't know, like in civics, all of you get to know in civics what we have called as a like आपको सेकंड चैप्टर है उसमें जो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीकन वाला रीजन है ना, दैट इज नॉट गोइंग टू बी कंसीडर्ड वाइल फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, आपको सर ने पढ़ाया वो वैसे, जस्ट टेल मी द थिंग, रवि सर ने पढ़ाया था आपको नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका वाला का टॉपिक, बिकॉज उनके पढ़ाने के बाद ही सब कुछ सिलेबस आया है ना।
शायद उन्होंने आप लोगों को पढ़ाया होगा ना? No, sir. नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो बेसिकली दैट इज एक्चुअली सेकंड चैप्टर में से ना सिर्फ एक ऐसा सेक्शन और एक ऐसा टॉपिक दैट इज एक्चुअली नॉट कमिंग इन द लाइक मेन एग्जाम, ठीक है। बाकी तो देयर आर थिंग्स की विच इज लाइक लास्ट चैप्टर तो आपको कट ही गया है, ठीक है। डेमोक्रेटिक राइट्स तो कट ही गया है, और फिर क्या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड वर्किंग इंस्टीट्यूशन और चार चैप्टर आ रहे, चार में से भी आप मानते चलो एक कट गया और एक में से एक टॉपिक नहीं आ रहा, मतलब 5 चैप्टर है, एक कट गया, तो 4 चैप्टर आ रहे, 4 में से एक टॉपिक नहीं आ रहा, तो उसको आप लगा सकते हो 3.5, ऐसे कर सकते हो ना। 3.5 चैप्टर आ रहे हैं हमारे, लाइक 3.5 चैप्टर। अगर 5 चैप्टर की बात है तो 5 ही चैप्टर है, हाँ 3.5 और 3.75 एंड हाफ, तो उसी के हिसाब से मार्किंग भी होगी आपकी। ओके चैप्टर तो 5 आ रही है ना सर, तो पॉलिटिकल में दो, एक हिस्ट्री में आ रहा है, 2 इकोनॉमिक्स में आ रहे हैं। जस्ट टेल मी अगेन, आई एम नॉट एबल टू गेट दैट थिंग। यस बादल, एक बार और बोलो। सिलेबस में तो 5 चैप्टर था ना। नहीं सिलेबस में मीन जो सीबीएसई का सिलेबस है ना बच्चे, मैं पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस में आपका यू आर नॉट गेटिंग द फिफ्थ चैप्टर जो आपका है ना, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, इट इज लाइक अ डेमोक्रेटिक राइट्स, दैट इज नॉट कमिंग। और सर सेकंड चैप्टर में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीकन कंट्री की बात हुई है, तो वो टॉपिक भी नहीं आ रहा, वो भी हट गया है, ठीक है। तो इट इज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सीबीएसई, बट अगर नॉलेज के लिए गेन करना है तो यू कैन स्टडी फ्रॉम दैट आल्सो, लाइक देयर आर मेनी अदर वेज। ओके ओके सर। गॉट अ पॉइंट। यस तो सर। अभी क्या है, विद इन इफ आई एम नॉट गोइंग टू बी रॉन्ग, विद इन सब पॉइंट, विद इन 2 or 1 minute द क्लास गॉट ओवर ऑटोमेटिकली, ठीक है, क्लास अपने आप ओवर हो जाएगी। तो उससे पहले ये बताओ, दिस इज द सिनेरियो, दिस इज द सिनेप्सिस ऑफ दिस चैप्टर, ओके। नेक्स्ट टाइम मे बी टुमारो आल्सो आई एम गोइंग टू टेक योर क्लास एंड आई विल लेट यू नो द टाइमिंग। सुबह जल्दी उठ जाते हो तो पहले ये बताओ, सुबह सुबह ले लो तुम्हें? No, sir. No, sir. नहीं उठोगे? उठ जाओ, एक दिन उठ जाओ, मैं भी No, उठ जाऊंगा sir. फिर जल्दी। Sir, नहीं उठना? 10 के बाद. घर पे तो रहते तो सोना क्या है फिर आफ्टर 10? चलो ठीक है, आई विल लेट यू नो द टाइमिंग, ठीक है। सुबह सुबह इसलिए ऐसा है ना कि संडे को फिर सुबह सुबह क्लास कर लिया आप लोगों ने भी, हमने भी क्लास हो गई, आपको भी क्लास हो गई, तो हम जल्दी जल्दी अपना काम फिर और कुछ काम भी कर सकते हैं ना, घर वाले काम। दैट वाज आई एम थिंकिंग टू टेक योर क्लास इन अर्ली इन द मॉर्निंग। इतनी भी अर्ली नहीं, लेकिन कम से कम 8 बजे ले लेकिन क्लास, बोलो कल 8 बजे की क्लास रख लूं? बताओ ऑल ऑफ यू, इफ यू आर ऑल आर रेडी देन आई विल गोइंग टू टेक योर क्लास टुमारो आल्सो, उसमें हम सेकंड चैप्टर कर लेंगे। बताओ या नया आफ्टर 8 o'clock, 8 बजे के मतलब 8, 8, 10, मतलब जैसे भी है क्लास ले लेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा ना। स्कूल में भी तो 8 बजे ही आते थे सब लोग। अच्छा आदित्य, आई गॉट योर एग्जाम, आई गॉट योर क्वेश्चन, बेसिकली आई डोंट नो हाउ इट विल लाइक हाउ इट विल गोइंग टू बिकम योर एग्जाम, ओके। एग्जाम जो आपके है बेसिकली वो किस बेसिस पे होंगे, बट इफ आई एम नॉट गोइंग टू बी रॉन्ग, it is totally through the Google Classroom because all the links has been sent to your mail, or you can say to your like आपको एक मेल प्रॉपरली Google Classroom का आपको मिल गया है ना, कोर्स मिल गया, सब्जेक्ट कोर्स। तो मे बी इन दैट वे you will going to get the question paper and all the things. So don't worry regarding the link के through आएंगे या कैसे होंगे, for that also we are not aware of that thing. If I got to know I will let you know surely, okay, don't worry for that। जैसे भी होगा आपको नॉलेज होनी चाहिए, बस आपके आंसर अच्छे होंगे तो यू विल गोइंग टू गेट द मार्क्स, ओके। और डोंट थिंक अबाउट द ओनली द मार्क्स, आपको नॉलेज लेनी है, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर में से कुछ और है तो बताओ, देन मे बी अभी क्लास ओवर हो जाएगी विद इन सम सेकंड। टेल मी, या तो फिर क्लास को ओवर करते हैं हम, कल हम नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ ना, प्लीज गो थ्रू दिस ऑल दिस थिंग, दिस विल गोइंग टू हेल्प यू मच, ओके। दिस विल गोइंग टू हेल्प यू मच इन अ वेरी better way. That is a scenario. Okay. So now, should we get over with this class? Class over करें? yes, sir. यस सर, ओवर कर Yes, दो। sir. नहीं अभी अगर आज नोट्स देख लेना, पढ़ लेना, उसमें से कुछ ना समझ में आए, ask me tomorrow also,
ठीक है, कल भी पूछ लेना, पर बी एंगेज इन द क्लासरूम। आई नो आप दूसरे सब्जेक्ट्स को एंगेज लाइक यू यूज्ड टू बी लाइक totally like engaged in the other subject, but you're not in engaged in SST. आप लोगों को पता नहीं आया तो मे बी दिस इज द थिंग। अब पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री तो मुझे भी नहीं पसंद है, फिर भी लाइक हमें तो पढ़ना तो है ना, 10 तो आप लोगों ने भी क्रॉस करनी है, तो पढ़ के तो लिख लोगे ना, और कुछ करना तो पड़ेगा आप लोगों को थोड़ा सा, नहीं तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो लेट अस मीट टुमारो, आई विल लेट यू नो द टाइमिंग, डोंट वरी, जो टाइमिंग होगा आराम से होगा आप लोगों को, ठीक है। ओके, और संडे को किसी का ट्यूशन तो नहीं होता ना? No, संडे के sir. दिन तो किसी के बच्चे का ट्यूशन तो नहीं होता जी? ये फिर बोलोगे सर शाम को भी क्लास हम कैसे लें, ठीक है। सो ओके, सो फिर लेट्स मीट टुमारो, ओके ऑल ऑफ यू। Yes, sir. आदित्य, आपको अपनी क्वेरी का आंसर मिल गया? आदित्य, यू गॉट द आंसर? बिकॉज आई डोंट नो लाइक मे, अगर आप किसी भी टीचर से पूछोगे तो दे डजंट नो कि हाउ द एग्जाम विल गोइंग टू बी कंडक्ट, ओके। It will be through Blackboard Classroom if it is in like, if I'm not going to be wrong, Google Classroom के थ्रू ही होगा सब कुछ, but how it will going to happen that I actually don't know. If I come across any information, I will going to let you know also, if it is like viable for all of you, okay। all of the class को start living and all the thing, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप संडे की मतलब आज की क्लास ले आए तो, ठीक है। ओके, बाय ऑल ऑफ यू। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, बाय। Bye, sir. Good afternoon, sir. बाय बाय बाय।